गुड आफ्टरनून थोरंगा, मैं रॉबिन्सन मार्टिन आप सभी का हमारे रेडियो स्टेशन जिसका नाम है लाइफ टॉक मल्टी एथनिक गॉस्पेल रेडियो स्टेशन में मैं आपका होस्ट रॉबिन्सन मार्टिन आप सभी का स्वागत करते हैं। आप हमें तौरंगा में, अगर आप तौरंगा में हो तो हमें 88.3 एफएम में आप रेडियो से सुन सकते हो, आप ऑनलाइन से भी सुन सकते हो। टिपुकी में हो तो 87.6 एफएम में आप ट्यून कर सकते हो, कैटी में 87.7 एफएम और हैमिल्टन में 87.6 एफएम और रोटोरुआ में 87.7 एफएम और फकटाना में 87.6 एफएम। कैटी में अगर आप हो तो 87.8 एफएम में और पुकेकोई में अगर आप रहते हो तो आप हमें 87.9 एफएम में सुन सकते हो। अगर आपके पास रेडियो नहीं है, कार में रेडियो नहीं है, आप अपने फ़ोन में और लैपटॉप में गूगल में जाइए या सफारी में जाइए और lifetalk.nz में आप हमें लाइव सुन सकते हो या 24 आवर्स आप दुनिया के कोने में कहीं भी हो आप प्रभु के वचन को सुन सकते हो। प्रभु के वचन में पावर है, उसमें ग्रेट ब्लेसिंग है जो वो हमको देता है। तो मैं आपका होस्ट रॉबिन्सन मार्टिन आज की शाम फिर से आप सभी का प्रभु यीशु मसीह के नाम में वी जस्ट वांट टू वेलकम यू all the listener and those who are going to listen us afterward and those who are listening right now. We are so excited, हम लोग बहुत excited है। आज हमारे साथ हमारे प्रिय पासवान पादरी पास्टर अपोस्टल पास्टर सैमुअल मुदलियार हमारे बीच में है। It's great to have him in our platform to glorify the name of Jesus Christ. You know, Pastor Samuel के बारे में बताना चाहता हूँ। He's a father figure. You know, he's a great encourager and he loved God. Not just love God, he loved God's people. So that's the difference between, you will see there are so many people, they love God, but they don't like someone. But right. When we met Pastor Samuel long time ago, we felt like he's really compassionate about other and always encourages those who are serving God. So it's a privilege, Pastor Ji, to have you with us. And, he's very busy. Soon he have to go to Fiji. So if you want to contact him, we can give you his number and you can invite him anywhere in the world. I want to tell you, if he will come to your place, you're going to get blessed because he carry the presence of God. And most of the thing the important thing, he carry the love of God. So it's a privilege, Pastor Ji, to have you. And I just want to give everything into your hand because I know he got something for each of us. So I'm eagerly waiting what he have for us because when the word comes, it's a bread of life. So if you're listening, tune in to 88.3 FM Tauranga में और टिपुकी में 87.6 FM, कैटी में 87.8 FM, रोटोरू एंड फकटाने we are off air. बट वी आर ऑनलाइन, आप हमें ऑनलाइन सुन सकते हो और पुकेकोई में 87.9 एफएम में, हैमिल्टन में 87.6 एफएम में। प्रभु आपको बहुत बरकत दे। आइए पास्टर सैमुअल मुदलियार के हाथ में आगे के समय को देते हैं। Thank you so much, Pastor Robin and Pastor Esther. Thank you so much, Life Talk radio station. It's such a blessing to just come and to see what you guys are doing, but to realize that God is touching so many hearts wherever the word of God goes. Yeah. हम एक चीज जानते हैं कि we struggle with life, right? Yeah. जिंदगी में कोई ऐसे लोग नहीं है जो अपने जिंदगी से स्ट्रगल नहीं करते हैं। Wherever मैं जाता हूँ, जहाँ कहीं मैं जाता हूँ, मैं लोगों के स्टोरी सुनता हूँ। I love to hear the story of people because उनके स्टोरी में पूरा ड्रामा है, ट्रेजेडी है, पेन है, हैप्पीनेस है, सॉरो है, दुख है, मुसीबत है। और कभी कभी जब हम सुनते हैं उनके कहानी we feel so sad. Many of the stories are hopeless. और काश हम सोचते कि किस तरह इनके स्टोरी बदल दे हम। और ये जब hopelessness हमारे जीवन में आते हैं, many of our people live in that way, not because they choose to, but because हालात ऐसे है जिंदगी के। कभी घर में कुछ हो गया, कभी परिवार में कुछ हो गया, कभी कोई गुजर गया है, कभी किसी तरह के हादसा हो गया जिंदगी में, and all that creates a story of pain, a story of hurt. And everywhere we go, this is what I have seen, and I thank God that He has given us compassion to deal with that. कि लोगों के कभी-कभी हम देखते हैं
उनके चेहरे में एक स्माइल होता है, लेकिन उनके दिल में एक आंसू होता है। एंड दैट इज द स्टोरी ऑफ देयर लाइव्स। इनका स्टोरी सब लोग नहीं जानते हैं। लोग देखते हैं इनको, सोचते हैं कि यार ये कितना अच्छा है, इनके पास पैसे, इनके पास घर है, दे हैव गॉट ऑल द थिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। और कभी कभी लोग देख के एनवी भी करते हैं, माने जलन करते हैं, इनके पास सब कुछ, मेरे पास कुछ नहीं है। लेकिन उनके स्टोरी में जो छिपा हुआ चीजें हैं, जो दुख है, जो क्लेश है, वो कोई नहीं देखता। क्योंकि हम लोगों के कहानी को उनके बाहरी रूप से देख के नापते हैं ना। तो अगर बाहरी रूप से हम देखते हैं उनके कहानी, यार तो सब कुछ ठीक लगता है, उनके घर में है, सब कुछ है, गाड़ी है, मोटर है, पैसा है, फैमिली है, बच्चे हैं, एंड एवरीबॉडी वुड अज्यूम यार इनकी स्टोरी बड़ा अच्छा है। बट रियली में is it that way, है ना? And then we have those people जिनके स्टोरी में शुरू से ही ट्रेजेडी लगता है, माने कि उनकी कहानी ठीक नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह एक दिन जाता है, and I want to connect this with the story of our lives, कि मार्कुस के किताब पहला अध्याय मार्क चैप्टर 1 वर्स 40 में एक कोढ़ से पीड़ित आदमी, एक लेप्पा यीशु के पास आता है और कहता, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे तू छू ले, अगर तू चाहता है तो मुझे छू ले। लेकिन हकीकत ये है कि एक कोढ़ से पीड़ित बीमारी को कोई नहीं छुएगा। Nobody will go near that person. और ये आके यीशु के सामने झुक गया और कहते, प्रभु अगर तू चाहता है तो मुझे छू ले। In other words, he's saying, Jesus, if you want to, you can change my story. If you want to, Lord, you can change my story, है ना? तो हम लोग के जिंदगी में कहीं ना कहीं पे ये ट्रेजेडी है। सबके डिफरेंट लेवल्स पे है, बट ये ट्रेजेडी सबके जीवन में। और शायद आप आज मेरे वचन सुनते हो, मे बी यू लिसनिंग टू दिस वर्ड्स एंड यू आर आइडेंटिफाइंग विद दैट, यस मेरे जीवन में ये ट्रेजेडी है, आई लॉस्ट अ लव्ड वन, माय मैरिज इज ब्रोकन, और घर में मुसीबत है, फाइनेंशियली मैं डिफिकल्टी में हूँ। ऑल ऑफ अस हैव अ स्टोरी एंड द बाइबल इज ए मैसेज ऑफ होप। सो वी हैव ए main story, our story, and then we have a God story. हम लोग किसी तरह से प्रॉब्लम ये है कि गॉड के स्टोरी में ट्रेजेडी नहीं है, गॉड के स्टोरी में तो रेस्टोरेशन है, ब्लेसिंग है, और कैसे हम उसके स्टोरी अपने स्टोरी से मिलाए, ये सबसे बड़ा चीज है ना। तो हम किसी तरह से जब ये सब सोचते हैं, हम लोग सोचते हैं कि अच्छा हम यहाँ चला जाए हो जाएगा, या इस जगह पे चला जाए हो जाएगा, इस विश्वास में आ जाए हो जाएगा। लेकिन ये आदमी यीशु के पास आया था, झुक गया वहां पे, क्योंकि ये कोढ़ से पीड़ित है। ये कोई जगह जा नहीं सकते, किसी मंदिर नहीं जा सकते, किसी गिरजाघर में नहीं जा सकते, किसी समाज में नहीं जा सकते। उनके उन समय पे ऐसे रहा कि वे शहर से बाहर रहते हैं, और फिर अगर कहीं पास में आते हैं तो उनको जोर से चिल्ला के कहना पड़ेगा, मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ, मैं कोढ़ी हूँ। और जब लोग सुनते सब भागेंगे उनके पास से, क्योंकि इतना खतरनाक बीमारी। लेकिन यीशु मसीह जब आता है तो ये आके उसके सामने झुक गया और यीशु से कहता, प्रभु अगर तू चाहता तो मुझे छू कर चंगा कर सकता है, जो हो नहीं सकता नेचुरली। और यीशु बड़ा प्यार से उसे देखकर कहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तू, मैं तुम्हें छू दूंगा। उसने हाथ बढ़ा के उसको छुआ, विच इज टोटली इम्पॉसिबल, कोई नहीं करेगा ये। एंड रॉबिन, दिस इज द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ गॉड्स लव। काश हम इसके प्यार को समझ जाए इस तरह से कि यीशु वो नहीं सोचा कि थोड़े समय के लिए कि इसकी कोढ़ी बीमारी मुझे पकड़ लेगा, मुझे क्या होगा। एंड दिस इज व्हाट द वर्ल्ड इज थिंकिंग अबाउट, कि मैं इसको मदद करूंगा, मेरा क्या होगा, है ना, मेरे पास क्या है देने के लिए इसके लगे। एंड वी फेल टू रियलाइज दैट ईच ऑफ अस कैन कैरी द कंपैशन ऑफ गॉड इन आवर हार्ट्स। और यीशु उसके पास खड़ा होकर हाथ बढ़ा के उनको छूता, कहता, मैं चाहता हूँ तू चंगा हो जा, मैं चाहता हूँ तू चंगा। कैन यू इमेजिन the joy of his life? That at last somebody is willing to touch him. आज तक कोई नहीं छूते रहे, उनके भाई बहन उनको नहीं छूते रहे, उनके जीवन में छूत आ गया था, माने कि भाई इससे दूर रहो, ये खत्म, ये मेरे परिवार का नहीं है, ये मेरे घर का नहीं, ये मेरे समाज का नहीं है, ये मेरे लहू खून का रिश्ता अब नहीं भाई भागो तुम, ये तुम्हारी बीमारी मेरे ऊपर आ जाएगा। Can you imagine the life of that person? Can you imagine the pain? कितने लोग आज अपने घर पे जो पारिया की तरह रहते, माने वो अलग कर दिए गए, घर में है फिर भी नहीं है, परिवार में है फिर भी नहीं है,
और शायद आज आप मेरे वचन सुनते होंगे, मे बी यू आर लिसनिंग टू दिस वर्ड टुडे। मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पास एक परमेश्वर है जो तुम्हारे स्टोरी को बदल सकता है। और हमारे स्टोरी में चाहे कितने भी पीड़ा है, कितने भी दुख है, जितने भी क्लेश है, टूटे हुए जिंदगी है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, हे बोझ से दबे हुए और थके मंद लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु मसीह हमें किसी धर्म में नहीं इंट्रोड्यूस करता, वो परमेश्वर के प्यार में हमें इंट्रोड्यूस करता है। दिस इज द मोस्ट पावरफुल थिंग दैट विल चेंज द स्टोरी ऑफ अ पर्सन। एक टूटी हुई जिंदगी में लोगों की शिक्षा की जरूरत नहीं है, उनको इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं, बस कोई आके उनके कंधे पे हाथ रख दे, कोई आके अपना कंधा उनको दे दे, बोले चल तू रो ले, तू मेरे ऊपर आंसू बहा। एंड दैट ब्रिंग्स द हीलिंग इन आवर लाइव्स। बट हमारे समाज में है नहीं वो, हमारे परिवार में वो नहीं है, क्योंकि हम किसी के बोझ उठाना नहीं चाहते हैं। लेकिन एक परमेश्वर है जो हमसे कहता है कि अपने बोझ मुझे दे दो, मैं तुम्हारी स्टोरी बदलना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे चेहरा में एक मुस्कान लाना चाहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में खुशहाली पैदा करना आई वांट टू चेंज द स्टोरी ऑफ योर लाइफ। कि आज के बाद में तुम्हारे स्टोरी में ये दुख भरे गीत नहीं रहेंगे। देयर विल बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड अ सॉन्ग ऑफ हैप्पीनेस, बिकॉज हेवन इज नेवर अबाउट पेन एंड सॉरो एंड हार्टटेक एंड स्ट्रगल। Heaven is about joy, about restoration, कि वो परमेश्वर टूटे हुए जिंदगी को देखता है और वो कहता है ये मेरा बेटा है, मैं इसके जीवन बदलना चाहता हूँ। ये मेरा लड़का है जो मुझसे दूर हो गया था, मैं इसको अपने पास लाना चाहता हूँ। एंड द वर्ल्ड डजंट अंडरस्टैंड दैट, बिकॉज द वर्ल्ड हैज कैटेगराइज्ड अस विद ए क्या कहते हैं उसको, हमें ऐसे ग्रुपिंग कर दिया, ये रिलीजियस ग्रुप है, ये सोशल ग्रुप है, ये कम्युनिटी ग्रुप है ना, हम लोग की ग्रुपिंग कर दिया। अब ये रिलीजियस ग्रुप है तो इसमें रहना पड़ेगा, ये कम्युनिटी ग्रुप है ये ऐसे ही रहेगा, ये सोशल ग्रुप है ये ऐसे ही रहेगा। लेकिन ये स्वर्ग में ऐसा नहीं है यार, परमेश्वर के पास ऐसा नहीं है। वो सब बच्चों को किसी कैटेगरी में नहीं डाला है कि ये कैटेगरी इसका है, ये काला है, ये गोरा है, आई एम जस्ट यूजिंग दिस एग्जांपल्स, या ये गिरा है, ये नशेड़ी है, ये बदमाश है, ये जेली है। परमेश्वर इसे कैटेगरी में नहीं डाला हमें। और बाइबल कहता है कि परमेश्वर संसार से इतना प्यार किया। दिस इज द ट्रांसफॉर्मेशन, दिस इज गॉड्स लव, दिस इज व्हाट ही ब्रिंग्स टू चेंज द स्टोरी ऑफ माय लाइफ। और जब वो हमारे जीवन, इसीलिए यिर्मयाह चैप्टर 29 वर्स 11 में परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारे जिंदगी के प्लान को जानता हूँ। आई नो द प्लान्स आई have for you. वो नहीं कहता मैं जानता हूँ तुम्हारा प्लान क्या, वो जानता है, वो जानता है हमारे प्लान कभी कामयाब नहीं होगा यार। कामयाब अगर होगा तो किसी मरेगा उसमें, किसी के ऊपर हम चढ़ेंगे, किसी को हम किसी तरह से गिरा के उठेंगे। लेकिन वो कहता I know the plans I have for you. I may have a lot of plans in my life, Robin, Pastor Robin, but यार ईश्वर का जो प्लान है ना वो बहुत ही डिफरेंट है। और शायद आज आप सुनते हैं, भाई द वे हम लोग सोचते कि यार हम इतना मिस्टेक कर दिया, इतना गलत कर दिया, क्या वो मालिक हमसे खुश रहेगा, क्या वो परमेश्वर हमें स्वीकार करेगा? हम और किसी के विषय में नहीं जानते, लेकिन मेरा जो मालिक है, मेरा जो प्रभु यीशु मसीह है, वो ऐसे लोगों के लिए आया, गिरे हुए लोगों के लिए। बाइबल कहता है मनुष्य के पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार देने के लिए आया। एंड सो विद दैट आज हम इस बात को जानते हैं कि वो मेरा मालिक जो है ना, उसके हाथ में हमारी चंगाई है, उसके हाथ में हमारा रेस्टोरेशन है, उसके हाथ में ताकत है हमारे जीवन को फिर से संवारने के लिए। उसके पास ताकत है हमारे टूटे हुए दिलों को जोड़ने के लिए, हमारे टूटे हुए परिवार को जोड़ने के लिए, हमारे टूटे हुए जिंदगी को जोड़ने के लिए। और अगर तुम आज अपने परेशानियों को एक सुंदर कहानी में बनाना चाहते हो, you want to turn your test into a testimony and your trials into a place where his glory is revealed, then today this God, the author of life, where his glory has been revealed, is saying to us, I want to start a new chapter in your life. मैं तुम्हारे जीवन में एक नया चैप्टर जोड़ना चाहता हूँ। आज से चलो तुम्हारी जिंदगी की जो कहानी ना, उसके चैप्टर हम क्लोज कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट अ न्यू बुक, एक नया बुक। एंड रॉबिन, व्हेन वी रियलाइज दैट यार वी फील लाइक वी हैव गॉट अ सेकंड चांस, एक मौका मिल गया है कि प्रभु मेरे दिल को
बदलेगा, Wow. मेरे हालात को बदलेगा Yeah. और मेरे जीवन की कहानी को बदल देगा. Wow. So I don't know what you're going through today. Yeah. हम नहीं जानते, भाई बहन माँ बाप जो भी कोई सुनते हैं, I don't know what you're going through with your life. जो स्ट्रगल है वो हम नहीं जानते, लेकिन एक है जो जानता है, और वो आज तुमसे कहता है तेरे जिंदगी की स्टोरी Yeah. मैं बदल दूंगा. Wow. तेरे जिंदगी की स्टोरी मैं बदल दूंगा. और इसके बदले में वो कुछ नहीं चाहता. वो कहता बस मुझे अपने जीवन में ले आओ, मुझे अपने घर में ले आओ, तेरा घर बदल जाएगा. Wow. मुझे अपने जीवन में ले आओ, तेरे जीवन बदल जाएगा. और अगर तुम मुझे अपने हालात में लाते हो तो तुम्हारे हालात बदल जाएगा. अभी इससे अच्छे गुड न्यूज और क्या है यार. दुनिया में सब दुख काटते हैं. That's right. सब दुनिया के परेशानी, समाज के परेशानी, पैसे के परेशानी, हम सब बीमारी के परेशानी में बैठे हैं. और वो हमसे कहता है तुम्हारे परेशानी के बीच में तुम मुझे ला दो. वो चला दो. Yeah. This is the most beautiful thing that can happen in a person's life. So I don't know what your story is today, but I know one who knows your story. Yeah. He knows your pain, he knows your hurt, Yeah. he knows your struggle, and he's saying, look, I have something better for you. तुम्हारे बुक जो है ना, इसको बंद कर दो आप. I'm going to start a new book for you. और ये नया बुक में ट्रेजेडी नहीं रहेगा. ये नया बुक में खुशहाली है, आनंद जीवन है, हेल्थ है, रेस्टोरेशन है, ब्लेसिंग है. तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे, तुम्हारे घर ब्लेस होंगे, तुम्हारे मन में शांति आएगा. और जितने हालात शैतान तुम्हारी जिंदगी में लेके आए, दुनिया के झमेला में आए हैं, वो सब वो कहता मैं तोड़ दूंगा. तुम्हारे घर के मैला जिंदगी की गंदगी में हटा दूंगा. And I'll change. This is the greatest story. Yeah. The God story fitting into my story. Wow. My story is broken. My story is damaged. My story is hurting. But then the God story changes everything. Wow. ये लेपा, ये कोड़ के बीमारी से आदमी ना, ये वहां से हंसते हुए गया. Wow. ये वहां से नाचते हुए गया. क्योंकि पहला चीज किसी ने उसको सुन लिया. Yeah. दूसरी चीज किसी ने हाथ बढ़ा के उसको छू लिया. Yeah. और फिर तीसरी चीज किसी ने उसको चंगा कर दिया. Yeah. अब वो कहता तुम्हारी स्टोरी बदल गया. आज से तुम समाज में घूमोगे. आज से तुम किसी पारिया नहीं रहोगे. Yeah. माने किसी टुकराए हुए नहीं रहोगे. Yeah. आज से you are going to be a child of the family of God. Wow. Wow. चलो हम can we pray? Can we just pray? ये एक बात में like जब आप बात कर रहे थे उस कोड़ी के बारे में, like it never says like he was Jew or Gentile. No. But faith. Yeah. You know? Like has shown him his ray of hope. Maybe he went everywhere. There was no hope. No. But he came to Jesus. Maybe he heard about the word, you know, from someone else, like, oh, Jesus is the healer. And that is why he came by faith. If you want, Yeah. you know, if you want, just heal This is me. what you can say. And wow. And so anyone can come to Jesus. Anyone. See, the beautiful thing is this, Robin. The man doesn't have a name. Yeah. God didn't describe him by his name. Yeah. He described him by his problem. Yeah. And the beautiful thing is, everybody has a problem. Yeah. So God doesn't look at our name and say, Yeah. okay, you are classified with this religion, with this group, with this community, with this social setting. No, sorry, but I need this one. I can only have this one. Yeah. He addressed him by his situation. Wow. And that's what changed everything. That's the beauty about our Lord Jesus Christ. He just deal with the problem. Yeah, but Not with the color, not with what you believe. You know, this is what, like, you know, I'm getting. And I know, like, you know, it doesn't matter which religion, what is your name, but God knows your problem. And He is the solution. And you know, the beautiful thing is this, जब हम उसके पास आते वो नहीं पूछते तुम किस जगह के, किस परिवार के, किस धर्म के तुम, किस समाज के, वो नहीं पूछता ये सब चीज. वो हमसे देख के पूछता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है, लेट मी हैंडल दिस, आई कैन टच इट. वो नहीं कहता या पहले ये करो तब मैं ये करूंगा, ऐसे करो तो मैं वो कोई फॉर्मूला नहीं देता. Raman, he doesn't give a formula, right? All he does is, चलो मैं तुम्हें छूना चाहूँ, चलो मैं तुम्हें छू, बाद में हम देखेंगे, but I want to touch you. Our God is going to touch where you're hurting first before He can change everything. And I believe right now He's touching someone. I'm sure. क्योंकि बहुत से लोग दुखी हैं, बहुत से लोग दुखी, बहुत से लोग परेशान हैं. वे घुट के अपने अंदर में, people are struggling in their hearts, in their lives. Only God knows their tears.
काश हम सबके आंसू देखते तो हम खुद रो पड़ते, लेकिन nobody shows their tears. But the beautiful thing is this, Pastor Robin, the beautiful thing is this यार, कि God hears the voice of the tears. हर एक आंसू में एक भाषा है, और वो भाषा सिर्फ वो मालिक जानता है, वो प्रभु जानता है, और कोई नहीं। और वो जब उस आंसू को देखता है तो वो आके हमें समेट लेता है। He comes and takes hold of us and says, my son, my daughter, it's not about your name, it's not about where you come from, I see where you're hurting and I want to touch you there. और जब वो छू लेता, तो जिंदगी बदल जाती है यीशु के छूने से। आई बिलीव जब उस कोड़ी को यीशु मसीह ने छुआ होगा, वाह वाह, जब उसने अपने आप को देखा होगा, रिजेक्टेड but now loved with Jesus, compassion about Jesus. I want you to get healed. He never want to be you to struggle in your problem, stuck in your problem, but he want to bring you out. So it was so amazing. That's why I read the Bible. Bible पढ़े और यीशु मसीह के प्यार को देखे. Don't judge. Don't judge the book by looking after the cover. Inside पढ़े आपको पता चलेगा उसके जैसा प्यारा कोई नहीं मिलेगा. उसके जैसा दीवाना जो आपका और मेरा दीवाना है, उसके जैसा कोई नहीं है. So it was a privilege, Pastor Ji, to have you. So encouraging. We were waiting for a long time, but today was the day for us and for you guys, those who are listening. So हमें ट्यून करना ना भूले. तोरंगा में 88.3 FM में, टिपुकी में 87.6 FM, कैटी में 87.8 FM, Rotorua and Whakatane, we are off air, but we are on line. You can hear anytime. Just type lifetalk.nz. You can hear us 24/7. Hamilton में 87.6 FM, Pukekoi में 87.9 FM. Please हमें ट्यून करें, और if you want to share with your friends and family, share with them, because I know they're gonna be get blessed, by the word of God, by testimony and worship song, जो कि हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश में और different languages में होता है. So Life Talk Multi-Ethnic Gospel Radio Station, bringing life into your world. आपका अपना हिंदी, पंजाबी और Multi-Ethnic Gospel Radio Station, तोरंगा बेस. आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में bless करता है. And I will request Pastor Samuel, क्योंकि बिना prayer के हम उनको जाने नहीं देंगे. And you just believe, because something is happening right now in your life, and when pastor will pray, some breakthrough is gonna come into your life and you're gonna be amazed. So हमें कॉल करना ना भूले, कॉल करें और प्रभु को प्रेस करें. और या आप हमारे वेबसाइट में जाकर, इफ यू वांट प्रेयर, वेबसाइट में जाकर अपने प्रेयर रिक्वेस्ट को भेजें. और इफ गॉड डिड एनी मिरेकल इन योर लाइफ, जस्ट लेट अस नो like how God touched you. But believe God is touching you right now. Yes. Amen. चलो हम प्रार्थना करेंगे. हम याद दिलाना चाहते हैं ये बात, your story is not finished. It's still being written, but you can decide who's going to write from here on. Do you want to keep on writing your story? Do you want other people to write your story? Do you want your problems to write your story? Or do you want God to write your story? Chalo, I'll pray for you. Heavenly Father, we thank you so much. Lord Jesus, thank you so much. You are rewriting the story of our lives. Lord, we thank you that you care so much. Thank you, Lord Jesus, that your blessing is upon each one of us today. Thank you, Lord Jesus, your grace is upon those who have listened to your message. And I ask you, Lord, today in Jesus' name, प्रभु तू उनके घर में जा, उनके दिलों में जा, उनके हालात में जा, उनके पीड़ा, उनके दुख में तू जा प्रभु. हे मेरे परमेश्वर, और आज तू अपने हाथ उनके ऊपर रख. शायद कोई अपने घर पे, maybe somebody is in their home today, sitting and crying. Maybe somebody is struggling with their hearts. Maybe somebody is struggling with their family situation, with their health, Lord. Jesus, I ask you today, please go and touch their hearts, Lord. Put your hand upon them as you put your hand upon this leper. And Lord, I thank you. You are going to rewrite the story in their life, a story of joy, happiness, healing, health, restoration, peace. Blessing is going to come
आज प्रभु परमेश्वर तेरे ब्लेसिंग हर एक के ऊपर है, जो दुख में है उनके दुख उठा ले, जो बीमार है उनके बीमारी में छू ले प्रभु, और जो आज टूटे हुए हैं उनको तो हिम्मत और आसरा दे। धन्यवाद देते हमारे खुदावंत यीशु मसीह अपने लोगों को छूने के लिए। धन्यवाद के साथ प्रभु सब सुनने वालों को हम तेरे हाथ में देते हैं लॉर्ड, एंड वी थैंक यू फॉर योर ग्रेस, योर गुडनेस एंड मर्सी in Jesus name. Amen. Amen. प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। अगर आपको पास्टर सैमुअल का कांटेक्ट नंबर चाहिए तो यू कैन कांटेक्ट अस। मेरा फोन नंबर है 021083837775। ये मेरी वाइफ एस्टर का नंबर है। मेरा नंबर है 0211763058 में आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं lifetalk.tga@lifetalk.com में भी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हो, या हमारे वेबसाइट में आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। सो सच ब्लेसिंग टू हैव यू पापा जी, आप हमारे साथ हो। नो ही इज अमेजिंग मैन, यू नो यू गोना बी गेट ब्लेस्ड। उनके फेसबुक पे आप फ्रेंड्स बन सकते हो। आई डोंट नो ही इज ऑन फेसबुक और नॉट, बट यू कैन कनेक्ट विथ हिम, एंड इफ यू वांट प्रेयर he love to pray for you. So thank you so much. मिलते हैं कल फिर से आप सभी से। प्रभु आपको बहुत आशीष दे। Thank you. God bless you.